بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیمان اسدی، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کروڑ علی صاحب۔ عزیز طلبہ، ہمیں جناب پرنسپل پروفیسر فاروق حیات خان متقانی صاحب نے حکم دیا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ آرڈر اور یہ حکم آیا ہے کہ طلباء کو آن لائن کورسز اور کلاسز پڑھائی جائیں تاکہ طلباء تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک رہیں اور اپنا قیمتی وقت صحیح جگہ پر استعمال کر سکیں۔ عزیز طلباء، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے FA پرچہ بے اسلامیات اختیاری۔ عزیز طلباء، اس پرچہ کے پڑھنے سے پہلے میں ایک بات طلباء کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ لیکچر تبھی سمجھ آئے گا یا سمجھا جا سکتا ہے جب یہ ہے کہ طالب علم کے سامنے اس مضمون کی کتاب بھی موجود ہو، تاکہ جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے، جو آپ کے سامنے پیغام پہنچا رہا ہے، جو آپ کو ٹیچ کر رہا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اچھی طرح اس کورس کو پڑھ سکیں اور آپ کے ذہن میں وہ پوری طرح سمجھ آ سکے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے میں کورس کا تعارف کروں گا، اور نمبر 2 پھر یہ ہے کہ اس کا پیپر کس طریقے سے، اس کا پیٹرن کیا آتا ہے، وہ دوسری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پرچہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کا مخصوص حصہ سورۃ البقرہ کے تقریباً 20 رکوع، پہلے 20 رکوع اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کی تشریح بھی کیا ہے پڑھنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 بیٹے، عزیز طلبہ، دوسرا حصہ حدیث کا تعارف اور تقریباً 40-42 احادیث، اس کا ترجمہ اور تشریح شامل ہے۔ اور نمبر 3 عزیز طلبہ، عربی گرامر ہے، مختصر عربی گرامر ہے، زیادہ نہیں ہے، مختصر عربی گرامر ہے، تاکہ طلباء جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، احادیث نبویہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور تشریح پڑھیں گے تو انہیں کچھ نہ کچھ گرامر کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ اس لیے 3 حصے شامل ہیں، تعارف قرآن مجید اور سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ نمبر 2 بیٹے، احادیث مبارکہ کا تعارف اور تقریباً 40-42 احادیث مبارکہ، اور نمبر 3 عربی گرامر۔ اچھا، نمبر اس میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے کہ نمبروں کی تقسیم، کہ پیپر کس انداز سے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری پرچہ بے، اس کے کل نمبر 100 ہوتے ہیں، اس کی 3 حصے بنائے جاتے ہیں، معروضی حصہ، مختصر سوالات اور انشائیہ حصہ۔ یہ 3 حصوں کو ملا کر 100 نمبر بنیں گے، اور یہ تینوں کے تینوں انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا سوال آپ کا معروض حصہ سے آئے گا، اور اس میں آپ نے
जिस नंबर को, जिस पॉइंट को आपने दुरुस्त समझना है, आपने उसी के मुतल्लका पेपर पर बबल फिल करनी है। और दायरा लगा होगा तो आपने उस दायरे को फिल कर देना है। तो ये 20 नंबर का होता है। ये पूरा जो हमने 3 हिस्से बनाए हैं, कुरान मजीद का तारुफ है, सूरतुल बकरा का हिस्सा है और हदीस मुबारका का तारुफ है और हदीस मुबारका 40-42 हदीस मुबारका हैं और इसके साथ अरबी ग्रामर है। इन तीनों हिस्से का कुछ ना कुछ वहाँ से लिया जाता है और 20 नंबर आपके सामने, 20 सवालात आपके सामने आएंगे और 20 के 20 लाजमी होते हैं। इसमें कोई चॉइस वगैरह कुछ भी नहीं होता, इख्तियार नहीं होता, बल्कि सब के सब क्या है, लाजमी होते हैं। तो 20 नंबर हैं मारूजी के। नंबर 2 अजीज़ तलबा मुख्तसर सवालात पर, इसके 40 नंबर होते हैं। 40। अच्छा, ये सवाल जो मुख्तसर सवालात में होता है, इसके गोया के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर 20 सवाल हल करने होते हैं, लेकिन वो भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, 6 सवालात सबसे पहले एक हिस्से में डाले जाते हैं। तकरीबन 10-11 सवालात डाले जाते हैं, उसमें से आपने 8 हल करने हैं। और नंबर 2 में से 8 सवाल, 10 सवाल, 9 सवाल यूँ इस अंदाज से दिए जाते हैं। तालिब इल्म ने 6 सवाल हल करने होते हैं। और नंबर 3 में उसमें भी तकरीबन 8, 9, 10 तक सवालात डाले जाते हैं और तालिब इल्म ने उसमें से सिर्फ 6 सवाल हल करने होते हैं। अगर कोई तालिब इल्म इससे इजाफी कर जाता है, 7 कर जाता है, 8 कर जाता है, तो मुम्तहिन उसमें से जो सही सवालात होंगे उसको वो देखेगा और उसके मुताबिक उसने नंबर लगाने हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें, उसने तीनों सवालात को जहाँ 8 करने हैं, जहाँ 6 करने हैं, जहाँ तीसरे में 6 करने हैं, उसमें से उसने उस अंदाज से देखने होते हैं। तो इस अंदाज से यूँ जो है 6 और 6 12 और 8 20, तो 20 तो आप ज़रब दें 2 के साथ, तो इस अंदाज से 40 नंबर यूँ बन जाएंगे। तो दूसरे सवाल में जो ये मुख्तसर सवालात में से आपके 40 नंबर शामिल किए जाते हैं। तो मारूसी के 20 हैं, मुख्तसर सवालात के 40 हैं और तीसरा हिस्सा है अजीज़ तलबा हिस्सा इंशाइया। हिस्सा इंशाइया बेटे, इसमें कुरान मजीद का तर्जमा जो आपने सूरतुल बकरा में से पढ़ा होता है, उसमें से 2 सवालात आपने हल करने होते हैं। और इसी तरीके से 2 सवालात आपने हदीस मुबारका में से हल करने होते हैं और हर सवाल के 10 नंबर होते हैं। तो यूँ 4 सवाल आपने हल करने हैं और हर एक सवाल के तकरीबन 10 नंबर होते हैं। तो 40 नंबर हिस्सा इंशाइया के बन जाते हैं। तो 40 नंबर हिस्सा इंशाइया के और 40 नंबर मुख्तसर सवालात के और 20 नंबर हैं मारूसी सवालात के। तो इस अंदाज से इन तीनों के मजमूए का टोटल 100 बनता है। तो अजीज़ तलबा ये हमेशा जहन में रखें कि ये सवालात मुख्तसर सवालात हों या हिस्सा इंशाइया हो या मारूसी हो, ये वो सभी को हल कर सकेगा जिस तालिब इल्म ने पूरा कोर्स को पढ़ा होता है, मुताला किया होता है, समझा होता है और उसके लिए उसने भरपूर तैयारी की होती है। और फिर इसमें एक बात और ख्याल रखें कि यूँ नहीं होता कि बाद दफ़ा मुम्तहिन जो है उसमें से वो शुरू में भी सवाल डाल लेते हैं, आखिर में भी डाल लेते हैं और दरमियान में भी डाल लेते हैं। तो इसलिए पूरे कोर्स का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी तमाम अज़ीज़ तलबा से गुजारिश है कि वो सिर्फ
मखसूस हिस्सा ना पढ़ें, बल्कि ये है कि आप इसको शुरू से लेकर कुरान मजीद के तारुफ से लेकर कुरान मजीद का तर्जमा, अहादीस मुबारका का तारुफ और अहादीस मुबारका का तर्जमा, तशरीह और अरबी ग्रामर, इन तीनों को पढ़ें और अच्छे नंबर हासिल करें। तो इसमें जो तालिब इल्म अच्छे अंदाज से तैयारी करेगा तो वो अच्छे नंबर भी ले सकेगा। और इसके लिए आप किसी भी राइटर की किताब ले सकते हैं, लेकिन इसमें तमाम पंजाब के जितने बोर्ड हैं उन सब का निसाब एक है, इसलिए इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो आप उम्दा किताब समझते हैं, अच्छी किताब समझते हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं और उसका मुताला भी क्या है कर सकते हैं। तो बस मज़ीद तलबा इसी बात पर इत्तफाक करते हैं। तो सबसे पहला लेक्चर हमारा इस निसाब जो पर्चा FA पर्चा बे इस्लामियत इख्तियारी का तारुफ है, और फिर यह है कि उसके नंबरों की तकसीम से मुताल्लिक है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे और फिर इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे।